Hey guys, welcome back to another learning video. I am Chugupta and I am saying a hi. Hope you are doing your studies well. So friends, as you know, in previous video we start our new chapter which is reproduction in plants. We cover this chapter till here, spore formation. Now we come to our next topic which is vegetative propagation. सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. What are the vegetative parts of a vegetative plant? So, vegetative part of a vegetative plant are stem, leaf, flower, and root, etc. So these are the vegetative part of a vegetative plant. अगर हम किसी स्टेम को कट करके यहाँ लगा देते हैं तो वो अपने ओन में फिर ग्रो होने लगता है. दिस इज़ अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सो as the vegetative part is used for the reproduction of plant, this is known as vegetative propagation. So vegetative propagation has occurs in two ways, which are natural and artificial. So when the new plant grow and develop naturally, this is called natural vegetative propagation, and when the new plant grow and developed artificially, this is called artificial method of vegetative propagation. So many new plants can be obtained from the roots, stems and leaf of the parent plant. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट्स के बारे में. Plants such as and fruits such as plants such as sweet potato. हम स्वीट पोटैटो को हिंदी में क्या कहते हैं? हम वी कैन से स्वीट पोटैटो एज अ शकरकंदी. सो स्वीट पोटैटो मीन्स शकरकंदी. आपने देखा होगा कि शकरकंदी या फिर स्वीट पोटैटो किस में ग्रो होता है? सॉइल में. तो as the roots of this sweet potato are live in a soil, so these roots can grow and develop in a new plant. This is due to the storage of the food in the roots of the sweet potato. When such swollen roots are buried in the soil, they are grow and developed into a new plant. And the second one is stem. So plants such as potato, ginger and onion can be obtained from their modified underground stem. And underground stem, now we learn about underground stem. What are the underground stem? And we learn the examples of the underground stem, which are potato, ginger and onion. So underground stems में क्या होता है? सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पे ट्यूबर. So in tuber we take an example of potato. As you can see in this picture that there are some eyeballs of a potato. जैसा कि आप देख सकते हैं, मतलब आपको पता होगा कि पोटैटो जो है वो सॉइल में ग्रो होता है. जब उसकी आईबॉल्स एज द आईबॉल्स ऑफ अ पोटैटो स्टोर फूड, द आईबॉल्स ऑफ अ पोटैटो डेवलप्ड इन अ न्यू प्लांट ऑफ अ पोटैटो. दिस इज अ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ ट्यूबर. नाउ वी कम टू अवर नेक्स्ट विच इज राइजोबियम. सो राइजोबियम में हम एग्जाम्पल लेते हैं अपना जिंजर का. दिस इज अ फोटो ऑफ जिंजर. एज यू कैन सी दिस that plants such as ginger have their underground stem that bear buds. Plants such as ginger have their underground stem as bear buds. These buds grow to give rise to new plant. And now we come to our next, which is bulb. We can take an example of onion in a bulb. That you can see the onion have some freshly leaves. This is the leaves of the onion. These leaves stored food for the new plant to develop the growth and germination of the onion. Okay, that these are the leaves of the onion plant which stored food for the next plant of the onion. Now so this is a process of bulb. Now we come to our next, which is runners or stolons.
सो रनर्स का हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। स्ट्रॉबेरी, सो स्ट्रॉबेरी में क्या होता है, स्ट्रॉबेरी हैव अ सिलेंडर ब्रांच विच इज ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम अ बेस ऑफ द स्टेम दैट ग्रोज एंड बेंड्स टू टच द सॉइल। इट मीन्स डैट जब स्ट्रॉबेरी हमारी पूरी कंप्लीटली ग्रो हो जाती है, तब जब वो हैवी हो जाती है तो उसकी ब्रांच जो है वो जब वो उसकी ब्रांच स्लेंडर वे में होती है तो वो झुक जाती है, इट्स बैंड झुक जाती है टू टच द सॉइल। मीन्स वो अपने फ्रूट को, मीन्स स्ट्रॉबेरी को टच करवा देती है सॉइल से, एज द ब्रांच ऑफ द स्ट्रॉबेरी इज सिलेंडर इन शेप। सो जब उसका वेट हैवी हो जाता है तो वो बैंड हो जाता है और वो सॉइल को टच कर देता है। सो इससे क्या होता है, वो सॉइल के अंदर दब जाती है हमारी स्ट्रॉबेरी, एंड इट कैन ग्रो इन अ न्यू जर्मिनी, इट कैन ग्रो इन अ न्यू प्लांट। सो नाउ वी कम टू अवर नेक्स्ट विच इज़ एडवेंटिशियस बर्ड्स। सो कुछ स्पेशल लीव्स होती हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। कुछ स्पेशल लीव्स होती हैं जिसमें एज यू कैन सी दिस एग्जाम्पल, कुछ स्पेशल लीव्स होती हैं जिसमें बर्ड्स लगी होती हैं। दिस इज़ द बर्ड्स, जिसमें बर्ड्स लगी होती हैं। जब ये बर्ड्स अपने आप गिर जाती हैं, मीन्स टूट जाती हैं, तो वो अपनी सॉइल में गिर जाती हैं। जब वो सॉइल में गिर जाती हैं तो उसमें सॉइल में जब बरीड हो जाती हैं, लग जाती हैं, तो वो अपने ओन में फिर आगे ग्रो होती हैं। सो दिस इज़ अ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नाउ वी कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो हमने अभी आपको बता दिया था व्हाट आर द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो जब हमारा व्हेन अवर न्यू प्लांट ग्रो एंड डेवलप्ड artificially from the parts of a single mature plant without the human human invention, it is called the artificial method of vegetative propagation. So what are the artificial methods of vegetative propagation? Stem cutting, layering, grafting and tissue culture. So stem cutting में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ रोज़ एंड शुगर कीन। सपोज दिस इज़ अ प्लांट ऑफ रोज़, एंड वी कट देयर स्टेम फ्रॉम देयर मिडल, एंड अगर हम रोज़ प्लांट की स्टेम को यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ पे किसी सॉइल में लगा देंगे तो वो अपना आगे ग्रो हो जाएगा। This is a method of artificial method of vegetative propagation. So our next topic is layering. So layering is the second method of artificial methods of vegetative propagation. So layering में क्या होता है, जैसे कि we can take the example of rose and jasmine. That suppose this is a plant of jasmine, as you can see in this picture. This is a plant of jasmine, and when it plants branch bends to from this soil and grow from there. So हमने क्या कर दिया उसमें, जैसे कि this is a branch of a jasmine plant, और हमने क्या कर दिया, उससे थोड़ा सा नीचे कर दिया, बेंड कर दिया और उस पर लेयरिंग कर दी। मीन्स हमने उसमें सॉइल की लेयरिंग कर दी। सो जब वो उसमें सॉइल की लेयरिंग हो जाएगी तो अपने रूट्स को वो नीचे बढ़ाने लगेगा और अपने इधर में एक प्लांट नया जैस्मिन का ग्रो हो जाएगा। दिस इज़ अ artificial method of vegetative propagation, which is layering. And our third method of artificial method is grafting. So grafting में क्या होता है, हमने as you can see in this picture, हमने एक साइकन ले लिया। मीन्स हमने एक किसी प्लांट का टूटा हुआ पार्ट ले लिया विच इज़ कॉल्ड साइकन। हमने किसी एक प्लांट में ऐसे नैरो लाइन कट कर दी, ऐसे नैरो लाइन कट कर दी एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एंड हमने उस साइकन को इसमें लगा दिया स्टॉक में, विच इज़ स्टॉक, एंड देन वी कवर इट एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एंड वी देन कवर्ड इट विद अ cloth, white cloth, and then we full covered with a paper bag.
सो जब हम उसे आफ्टर टू डेज़ या 4 डेज़, सो हम उसमें देखेंगे कि उसमें पूरा वो अपने रूट्स को और अपने अच्छे से पकड़ चुका है और वो अच्छे से ग्रो हो रहा है. सो वी कैन टेक द एग्जाम्पल हेयर ऑफ रोज़, गुआवा, मैंगो, लेमन एंड ऑरेंज. सो आपने देखा होगा कि रोज़ के प्लांट में या फिर अगर हम गुआवा के प्लांट में अगर हम किसी स्टेम को ऐसे कट कर देंगे, मीन्स दिस इज़ अ स्टॉक, दिस इज़ अ साइकन, एंड अगर हम साइकन को इधर स्टॉक में लगा देंगे और उसके बाद जैसा कि इसमें हम ऐसे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, ग्राफ्टिंग मेथड में, स्पेशली ग्राफ्टिंग मेथड में क्या होता है, मैं आपको और अच्छे से बता दूं कि जैसे कि दिस इज़ अ प्लांट ब्रांच ऑफ अ रोज़ प्लांट, एंड वो यहाँ से अगर कट हो गई है, वो यहाँ से हमने कट कर दिया और वो ख़राब हो गई है, या किसी एनिमल ने उसे कट कर दिया है, फाड़ दिया है, मतलब कट कर दिया है, तो हम उसमें क्या करेंगे, यहाँ से एक नैरो लाइन लगाएंगे विच इज़ द स्टॉक, एंड हम यहाँ पे एक साइकिल लेंगे, मीन्स किसी हम रोज़ प्लांट का किसी स्टेम लेंगे जिसमें बर्ड्स और लीव्स लगी होंगी. सो उसे हम साइकिल को इस स्टॉक में लगा देंगे. दिस इज अ स्टॉक, देन दिस, जब हम इसको स्टॉक को लगा देंगे और उसके बाद हम एक वाइट क्लॉथ की मदद से उसे रैप कर देंगे, वार्प कर देंगे पूरा. सो उसकी मदद से वो पूरा चिपक जाएगा, एंड देन वी कवर इट विद अ पेपर बैग, and after 2 or 3 days we can see that they can join together with their roots, and they are growing in their own and developed into the new plant. So this is the artificial method of vegetative propagation. Now we come to our next topic, which is tissue culture. So tissue culture में क्या होता है, टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि हम टिश्यू कल्चर से बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं, मीन्स बहुत सारे प्लांट्स हम उसमें ग्रो कर सकते हैं. मीन्स हमने किसी प्लांट की लीफ को हमने इधर ले लिया और उसके कुछ टिश्यूज़ निकाल लिए, और उसमें सॉइल में ग्रो कर दिया. सो टिश्यू कल्चर से हम बहुत ज़्यादा प्लांट्स जो है एक बारी में ग्रो कर सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं. So this is a tissue culture. So now we come to our next topic, which is advantages of vegetative propagation. So as you know that in first video I tell you that in vegetative propagation the plants can grow easily and they not take so much time to grow and germinate. मीन्स प्लांट्स जब हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड्स की हेल्प से ग्रो करते हैं तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करने में. और जैसे कि जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं, मीन्स गुआवा, मैंगो, लेमन एक्सेट्रा, दीज आर द फ्रूट प्लांट्स, वो फ्रूट्स देने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और वो जल्दी से हमें फ्रूट्स दे देते हैं. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. So friends, this is all for today. Thank you for watching this video, and make sure if you like this video, make sure you give it a big thumbs up, and if you are new on my channel, please subscribe my channel, and we will see you soon in next video. Thanks for watching. And friends, as you know, as you see this channel, that I have changed the name of my channel from #LearnWithShubh to Study Forever. So please do check the channel name and subscribe my channel if you are new on my channel. So friends, thank you for watching this video. Bye bye. See you in the next video.